Class 10, today's our topic of chapter number 6, life processes, nutrition in the living organisms or living beings, how the digestion and nutrition, how they obtain nutrition, we're going to discuss today in detail. So starting with the basic points, that in human beings generally, the process of the nutrition or digestion takes place in the alimentary canal, which is made up of the various types of organs and also contains the glands. Alimentary canals, it starts from the mouth and end up to the where the digestion, whole process of digestion take place. Firstly क्या होता है, mouth से, through the mouth the food is taken inside and is chewed by the teeth and mixed up with the saliva, which contain the enzyme amylase, which plays an important role for digesting of the starch. अब amylase starch, हमारे amylase नाम का एक enzyme present होता है, that is basically present in our saliva, which mixes with the food and help in the digesting the starch. Now next regarding that, after chewing the food enter the stomach through कहाँ से पास होता है, basically pharynx and esophagus and pharynx से food पास होता है, that it goes into the stomach, and from the stomach present होते हैं different type of gastric juices. इन gastric juices का काम क्या basically होता है, जैसे hydrochloric acid, different type of other acids are also present in the stomach and also contain mucus in the stomach lining, which protects the stomach from the acidic effects or acidic reactions which are going inside the stomach for the digestion of the food. डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जो भी एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट है इन द स्टमक, उसको एक्शन से प्रिवेंट, मतलब एसिडिटी ना हो, बॉडी में प्रॉब्लम ना आए, उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करने के लिए म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है अराउंड द स्टमक इनसाइड ऑफ अ बॉडी. नाउ द गैस्ट्रिक जूसेस का फॉर्मेशन पता लग गया हमें. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक मेक एसिडिक मीडियम फॉर द बेसिकली मेक एसिडिक मीडियम एक्ट करता है फॉर द डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन हो, उसमें से प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए मेन रोल प्रोवाइड करता है ये. डाइजेशन ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैट, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल पता लग गया हमें. अब इसके बाद वो कह रहा है कि दैट इज़ द एक्शन ऑफ द एसिड मेक्स द नॉर्मल कंडीशन फ्रॉम द स्टमक. फूड basically enters into the small intestine where the complete digestion of the carbohydrates, fats and the minerals and the proteins take place, and liver also secrete the bile juices here, and which basically emulsifies the fats. The pancreas also release the pancreatic juices where basically help in the digestion of the different type of fats, proteins and the carbohydrates and starch by releasing the three enzyme basically pancreatic juices में release होते हैं. One is amylase, second was trypsin and the third is a lipase. ये तीनों enzyme collectively role play करते हैं in the digestion of the fats, vitamins and the different type of the starch and the carbohydrates and proteins. अब देखो कि पैंक्रियाटिक में से पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज़ हुए, लीवर में से लीवर जूसेस रिलीज़ हुए, बाइल जूसेस रिलीज जैसे कहते हैं हम लोग, और हमारा जो फूड है वो कहाँ पे एंटर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोसेस टेक प्लेस. स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ डाइजेशन होती है प्रॉपर. उसके आगे देखो, अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन carbohydrates, fats and vitamins are completely digested and converted into glucose, amino acids, fatty acids and glycerol. अब जो कन्वर्जन हुई है, जो हमारी बॉडी में कन्वर्जन बेसिकली हुई है, जैसे डाइजेस्टेड फूड है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो कन्वर्ट हो गए बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, डिफरेंट एंजाइम्स के एक्शन से वो कन्वर्जन हुई. बाइल जूसेस का एक्शन हुआ, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन हुआ, डिफरेंट हमारे पैंक्रियाटिक जूसेस का एक्शन हुआ, उससे क्या डाइजेशन हुई, उसमें से जो प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड था वो ऑब्टेन हुआ इन द फॉर्म ऑफ किस में कन्वर्जन होगी, ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में एंड आल्सो इन द ग्लिसरॉल. यहाँ तक हमारे पास डाइजेशन का क्लियर हो गया. अब आगे हमारे पास डाइजेशन के बाद क्या होता है, द विली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड एंड सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. अब विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट है, हमारी ऑर्गन है बॉडी में, वेरी स्मॉल साइज़ में होता है विली में सिर्फ अब्जॉर्प्शन होती है, ओनली, कुछ और नहीं होता है विली में, सिर्फ अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होती है. जितना भी फूड में से हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें अब्जॉर्ब किए बॉडी ने, वो सप्लाई किया जाए डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ से, डिफरेंट ऑर्गन्स को वो सप्लाई किया जाता है. एंड लास्ट रिगार्डिंग दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड अगेन इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर large villi absorbs basically water from the मटीरियल. अब उसमें से जो वाटर बचा होता है, जो वेस्टेज मटीरियल है, उसमें जो वाटर है जो यूज़ हो सकता है
दैट इज़ बेसिकली एब्जॉर्ब बाय द विली एंड सेंड अगेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। प्योरीफिकेशन होती है उसके बाद, फिर इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सेंड किया जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो थ्रू आवर एनस is out from our body. This is how the process of the digestion take place and nutrients are obtained. मेन रोल किसका था इसमें, फिर सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। फूड थ्रू द विंड, थ्रू हमारा माउथ, ऑसोफेगस, फेरेनेक्स से स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारे पास डिफरेंट हमारे पास एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। वो एसिड्स क्या करते हैं बेसिकली, दीज एसिड्स कन्वर्ट द फूड इनटू द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे वहाँ से इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होती है फूड की। पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूसेस वहाँ से जाके मिक्स होते हैं उसमें, वो डाइजेशन करते हैं। उसमें से पैंक्रियाटिक जूसेस में से डिफरेंट एंजाइम्स निकलते हैं, लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया आपका माइलेज हो गया, वो निकलते हैं, वो अब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे लीवर में से बाइल जूसेस है, वो अब्जॉर्प्शन में रोल पड़ेगा, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर ग्लिसरॉल, हमारा ग्लूकोज बनता है, अमाइनो एसिड बनते हैं, फैटी एसिड बन जाते हैं, वो फिर विली में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है बेसिकली। विली में अब्जॉर्प्शन होती है सिर्फ फूड की। अब्जॉर्प्शन होकर जो बाकी फटा होता है फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज विली के पास भेजा जाता है। वहाँ पे विली में अब्जॉर्प्शन होने के बाद वो फिर से जो वाटर उसमें से अब्जॉर्ब होगा, दैट इज सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स आफ्टर प्योरीफिकेशन। तो प्योरीफिकेशन होने के बाद किडनीज़ का रोल हो गया। प्योरीफिकेशन होने के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में पास किया जाता है, एंड आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, दैट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। दैट वाज फॉर टुडे बेटा। थैंक यू।